یہ وش ہے کہ میرے پاس ہر چیز ڈبل ہونی چاہیے. چرچ میں سے کتنے لوگوں کی خواہش ہے, ان کی ڈیزائر ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ڈبل ہو. آج ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس ہر ایک چیز ڈبل ہونی چاہیے. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ آج ہر انسان اپنا حصہ مانگتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے. اگر وہ کسی خادم کے ساتھ ہے تو وہ خادم سے کہے گا کہ مجھے میرا حصہ دے, میں تیری خدمت کر رہا ہوں, میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں, میں تیرے ساتھ وفادار ہوں, میں تیرے ساتھ سنسیئر ہوں, میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں, مجھے حصہ چاہیے. زبدی کے بیٹوں کی ماں نے بھی خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ ہماری یہ ڈیزائر ہے, میری یہ وش ہے, جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو میرا ایک بیٹا تیرے دہنے طرف ہو اور دوسرا بائیں طرف ہو. یہ اس کی ڈیزائر تھی کہ حصہ مانگ رہی ہے. خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ بیٹے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ زبدی کے. خداوند یسوع مسیح کی آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے حصہ چاہیے. ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ڈبل ہونی چاہیے, ڈبل ہونی چاہیے, ہمارے پاس ہر چیز ہوگا. کتاب مقدس کہہ رہی ہوگا, سب کچھ ہوگا. اس سے بیشتر کہ ہم کتاب مقدس کو پڑھیں, چند لمحات کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. خداوند جی, تو جانتا ہے کہ میری عقل ناقص ہے, مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے, لیکن آج شام تو مجھے سکھائے گا تو میں تیرے لوگوں کو سکھا دوں گا. میرے خدا, میں اپنے آپ کو تیرے سامنے خالی کرتا ہوں. اس خالی برتن کو روکے مسا سے بھر دے میرے خدا. اے میرے خدا, تو مجھے کلام کے وسیلہ سے گہرے میں لے جا میرے خدا من, گہرے میں لے جا. آج شام گہرے طور پر استعمال کرنا میرے خدا من. پاک روح تو میرا بہترین استاد ہے, تو مجھے لیڈ کرنا, مجھے گائیڈ کرنا, مجھے لفظوں کی ترتیب دینا میرے خدا. تیرا شکر یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آئیے میرے عزیزوں, جن کے پاس کلام خدا بندی ہے میرے ساتھ نکالیے سلاطین کی کتاب, دوسرا سلاطین, اس کا دوسرا باب, اس کی نام ہی ہے دوسرا سلاطین, اس کا دوسرا باب نامی ہے. کتاب مقدس میں جو مرقوم ہے. اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا, اس سے بیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں, بتا میں تیرے لیے کیا کروں. الیشا نے کہا, میں تیری منت کرتا ہوں, تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو. کتاب مقدس کا پڑھا جانا, سنا جانا, سمجھا جانا, قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے بھائی سے برکت کا سبب ہو. الیشا نے مقدس ایلیا سے کہا کہ مجھے تیری روح کا دگنا حصہ چاہیے. میں تیری خدمت کرتا رہا ہوں, میں تیرے ساتھ وفادار رہا ہوں, میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے, میں تیرے ساتھ سنسیئر رہا ہوں. اب تو سودے آسمانی کرنے والا ہے, اب تو آسمان پر اٹھایا جانے والا ہے. میری یہ ڈیزائر ہے, میری یہ وش ہے کہ مجھے تیرے روح کا دگنا حصہ چاہیے, مجھے تیرے روح کا دگنا حصہ چاہیے. بڑا مشکل سوال کیا ہے مقدس الیشا نے. ایلیا جو ہے یہ الیشا کا استاد ہے. یہ ایک استاد کی اور ایک شاگرد کی یہ ساری سٹوری ہے. شاگرد
अपने उस्ताद से ये कह रहा है कि मुझे तेरे रूह का दुगना चाहिए। मुकद्दस एलिया एक 90 खादम है, मसीह से बना हुआ खादिम है। मुकद्दस एलिया ने दरियाई यरदन को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है। मुकद्दस एलिया के कहने से आसमानों से आग नाज़िल हुई है। मुकद्दस एलिया के कहने से आसमान 3.5 साल तक बंद हुआ है। मसीह से भरा हुआ है ये खुदा का मंसूर, मसीह से भरा हुआ है। इसने मुकद्दस अलीशा का चुनाव किया। मुकद्दस अलीशा इसकी खिदमत करता रहा। ये नहीं कि मुकद्दस एलिया का कोई और शागिर्द नहीं था। अगर सलातीन की किताब उसका 19वां बाब उसकी 19वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मुकद्दस एलिया ने इसे मसा किया है, इसे खुदा की खिदमत के लिए नाइट किया है कि आज से तू खुदा की खिदमत करेगा। जिस तरह मैं खुदा के साथ चल रहा हूं, तू भी खुदा के साथ चला करेगा। मुकद्दस एलिया ने अलीशा से कहा, उसे नाइट किया, उसे खिदमत के लिए मसा किया उसे खुदा की खिदमत के लिए। क्या से तू खादिम होगा। और भी बहुत ज्यादा शागिर्द हैं, मुकद्दस एलिया के और भी बहुत ज्यादा शागिर्द हैं, लेकिन शागिर्द वही कामयाब होता है जो अपने बाप का, अपने उस्ताद का, अपने लीडर का ताबेदार होगा। अब मुकद्दस अलीशा को पता चल गया है कि मेरा लीडर, मेरा उस्ताद, मेरा मुअल्लिम, मेरा टीचर, मेरा आका, मेरा खुदावंद, मेरा मुनज्जी, मेरा रब्बी, मेरा खुदावंद मुझसे जुदा होने वाला है। उसने डिमांड कर दी कि जाने से पहले मेरी बात सुन, मुझे चाहिए, मुझे जिस तरह का तू 90 खादम है, जिस तरह से तू मसीह से बनी हुई शख्सियत है, मैं चाहता हूं कि तेरे रूह का दुगना मुझ पर हो। क्या आज हम जितने भी शागिर्द हैं, क्या हमारी ये डिजायर है आज कि इस उस्ताद नालों बदलना चाहते हैं? आज रियलिटी के अंदर पता क्या पाया जाता है, अगर लीडर कला ही दिमाग में बैठा है ना, तो शागिर्द को कोई परवाह नहीं हैगी। शागिर्द को कोई परवाह नहीं है। शागिर्द इस वहमो गुमान के अंदर है कि उस्ताद ठहरे या ना ठहरे, मैं की कर सकना वा। लेकिन मुकद्दस अलीशा ऐसा नहीं है। मुकद्दस एलिया उसे निकाल कर रहा है कि जा, तू जा, चला जा, मैंने फलां जगह पर जाना है। उसने कहा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे खुदा की सौगंध, मुझे कसम है खुदा की, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज अगर लीडर नाराज हो जाए, उस्ताद मोहतरम नाराज हो जाए, ते शागिर्द दी अकड़ नहीं सांभी जाती।
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਅਗਰ 2-4 ਐਤਾਂ ਜਾਂ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, मैं पता नहीं कि बन गया वहां। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल की तालीम हरगिज़ ये नहीं है। अगर आप किसी के शागिर्द हैं तो बाइबल की तालीम है, बाइबल में ही लिखा है कि फिर ताबेदारी कर। अगर तेरा उस्ताद सख्त भी है, अगर तेरा लीडर सख्त है, अगर तू उसके साथ चलना चाहता है तो फिर बर्दाश्त कर। जब वक्त आएगा तो वो तुझे खाली नहीं छोड़ेगा, वो तुझे तन्हा नहीं रहने देगा। खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी 12 लोग चलते रहे हैं। क्या खुदावंद ने उन्हें खाली छोड़ दिया? क्या बरकत दिए बगैर ही उन्हें छोड़ दिया कि जाओ यार ताला कोई वालीवाल से नहीं होनेगा, जाओ? बाइबल में ऐसी तालीम नहीं लिखी। खुदावंद ने उन्हें ब्लेस किया, खुदावंद ने बरकत दे। मत्ती की अंजील 28वें बाब की आखिरी वर्सेस उसने कहा कि बस अब तुम जाओ, अब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये थी उनकी ब्लेसिंग, ये थी उनकी ब्लेसिंग। मुकद्दस अलीशा जानता है कि मेरा उस्ताद कैसा है। वो मसीह से बना हुआ शख्स है, मसीह से बनी हुई शख्सियत के साथ मैं चल रहा हूं। मुकद्दस अलीशा जानता है, लेकिन वो साथ अपने उस्ताद का नहीं छोड़ रहा। आज वादा तो करते हैं कि साथ चलेंगे यीशु के, लेकिन खाकर वफा की कसमें रास्ते में छोड़ जाते हैं। आज हम खुदावंद के साथ वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि खुदावंद मैं तेरे लिए ये कर दूंगी, खुदावंद मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। जब मुश्किल वक्त आता है जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर, जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सारे प्रॉमिस भूल जाते हैं, हम सारे वादे भूल जाते हैं। लेकिन खुदावंद कभी भी नहीं भूलता। उसने कहा है कि मैं कभी तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें दस्त बरदार ना होने दूंगा। तेरी माँ तुझे छोड़ जाए, तेरे भाई तुझे छोड़ जाए, तेरी बहनें तुझे छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? मुकद्दस अलीशा अपने उस्ताद की ताबेदारी के अंदर है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम कितना ताबेदारी के अंदर हैं, हम कितना अपने असातिज़ा के साथ, अपने उस्तादों के साथ वफादार हैं। अगर नहीं वफादार हैं तो फिर बरकत नहीं मिलेगी, फिर आप बरकत से महरूम रहेंगे, फिर आप बरकत से खाली रहेंगे। जिस तरह से आप खाली आते हैं इसी तरह से ही खाली वापस चले जाएंगे। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, अपने चर्च के साथ सिंसियर नहीं हैं, अपने उस्ताद के साथ, अपने लीडर के साथ, अपने टीचर के साथ सिंसियर नहीं हैं, तो फिर आप बरकत नहीं पा सकते, ब्लेस नहीं हो सकते, बंधन
آپ تابعدار نہیں ہیں, اگر آپ سنسیئر نہیں ہیں برکت لینے کے لیے, مسیح کو حاصل کرنے کے لیے, مقدس الیشا کتنی تگودو کر رہا ہے. اگر پہلا سلاطین اس کا 19واں باب, اگر اس کی 19ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو جب مقدس ایلیا اس کے پاس گیا ہے تو اس نے اپنے ماں باپ کو ہی چھوڑ دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. بڑا رچ مین تھا یہ, جس کے پاس 12 جوڑی بیل ہو, جس کے پاس کھیت ہو, جس کے پاس ہل ہو, کیا وہ غریب ہو سکتا ہے؟ مقدس الیشا غریب نہیں تھا, غریب نہیں تھا. پہلے سلاطین کے اندر لکھا ہے کہ یہ رچ ہے, یہ امیر ہے, 12 جوڑی بیل اس کے پاس ہے, یہ بہت امیر ہے. لیکن جب اس کا چناؤ کر دیا گیا تو اس نے اپنی تمام خواہشات اسی جگہ پر رکھ دی اور استاد کے پیچھے ہو لیا. آج اسی خواہشاں بھی نال رکھیاں نے, ہر کام اسی نال رکھیا ہے, چگلیاں بھی اسی نال رکھیاں نے, گالی گلوچ بھی اسی نال رکھیا ہے, ہر کام اسی نال رکھیا ہے. تو پھر ہم امید برکت کی رکھ رہے ہیں. ایک نوکر 2 مالکوں کی کیسے خدمت کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ندیم صاحب آپ کا ٹائم, ڈیوٹی ٹائم کتنے بجے کا ہے؟ 8 بجے کا. بھائی ندیم کا ڈیوٹی پر جانے کا ٹائم ہے, کیا آپ 8 بجے کوئی اور جاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ نہیں کر سکتے. بائبل کی تعلیم ایسیٹی سیم اسی طرح ہے. ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو ہم اپنی خواہشات کو آگے رکھ لیں تو یا پھر یہ سنو, فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. آج فیصلہ کرنے کا دن ہے, فیصلہ کر لیجئے. اگر آپ نے آج سے پہلے فیصلہ نہیں کیا, اگر اپنی لائف کا فیصلہ نہیں کیا, اب تک بھی آپ برکت سے محروم ہیں. کولو کے بیل کی طرح سالوں سال اسی طرح سے اسی طرح کے ہیں, حالات نہیں بدل رہے. حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے. اپنے آپ کو بدلیے, حالات خود بخود بدل جائیں گے. آپ اپنے آپ کو بدلیے, حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے, تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. مقدس ایلیا کے ساتھ مقدس الیشا چل رہا ہے. اگر استاد اپنے ہاتھ دھونے کے لیے جاتا تو مقدس الیشا اس کے ہاتھوں پر خود پانی ڈالتا, خود پانی ڈالتا. یہ ہے ریسپیکٹ, یہ ہے خدمت. جڑے خدا نو اسی دیکھیا نہیں ہے, اسی او دا نام چھپنے پے ہاں, او دی اسی خدمت کرنے پے ہاں. تے جڑا لیڈر روح زمین تے خدا نے ساڈے لیے مقرر کیتا ہے, اگر اسی او دی رسپیکٹ نہیں کرتے پے, او دی عزت نہیں کرتے پے, او دے کہیں کوائے دے وچ نہیں آگے, تے جڑے خدا نو اسی دیکھیا نہیں ہے کس طرح توقع اسی کر سکنے ہیں؟ کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں اچھے کے؟ جس خدا کو خدا نو کبھی کسی نے دیکھا, پوری میٹنگ میں سے کوئی بتا دے, پورے چرچ میں سے کوئی بتا دے کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے, تے لیڈر تے تہاڈے سامنے آ گیا,
उस्ताद तो ਤੁਹਾਡੇ सामने है। अगर आप उस्ताद की कदर करना नहीं जानते तो जिस खुदा को आपने देखा नहीं है, जिस खुदा की आप मानता कर रहे हैं, जिस खुदा की आप पूजा कर रहे हैं, जिस खुदा की आप बंदगी कर रहे हैं, जिसके सामने आप झुके हैं, जिसके सामने आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, जिसकी आप प्रस्तिश कर रहे हैं, क्या उसके साथ आप सिंसियर कैसे रह सकते हैं? मुकद्दस अलीशा सिंसियर है, अपने उस्ताद के साथ ये सिंसियर है, नहीं पीछा छोड़ रहा, नहीं साथ छोड़ रहा अपने उस्ताद का, अपने उस्ताद के साथ ये चल रहा है ये हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, हमने चलते जाना है, रुकना नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी एक मैसेज किया था कि अगर आपका कोई निशान नहीं है तो फिर आप फेल हैं, जीरो। अगर मंजिल पर पहुंचना है तो फिर निशान डिसाइड करना पड़ेगा, अपना निशान डिसाइड करना पड़ेगा। ते जे निशान तो बगैर ही टकरा मार दे पे जे तो फिर मेरे अजीजों रास्ता नहीं मिलेगा, नॉट एट ऑल। फिर आप भटक जाएंगे, आपको रास्ता नहीं मिल सकता। अगर रास्ता पाना है, अगर मंजिल पर पहुंचना है तो अपने सामने एक निशान को रखिए कि मैंने फला निशान तक पहुंचना है। पहुंच जाएंगे, एक वक्त आएगा पहुंच जाएंगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हमने अपनी मंजिल का निशान नहीं रखा तो रख लीजिए, मेरी मंजिल का निशान यीशु है। मैंने पहुंचना है उस तक, मैंने प्रॉमिस किया है खुदावंद अपने खुदा से कि जितनी देर तक मेरी सांसें चल रही हैं मैंने तेरी खिदमत करनी है, मैंने तेरे साथ चलना है, हालात कैसे भी क्यों ना आ जाए। मुकद्दस पौल कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? क्या ये गुर्बत है, क्या ये दुख है, क्या ये तंगियां, क्या ये मुसीबतें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मुकद्दस एलिया के साथ मुकद्दस अलीशा चल रहा है। अब इसके उस्ताद ने बता दिया है कि मैं तुझसे जुदा हो जाऊंगा, मैं तुझसे जुदा होने वाला हूं, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? चला जा वापिस। लेकिन वो कसमें खा रहा है कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे कसम है, मुझे कसम है, मुझे सौगंध लगे अगर मैं तेरा साथ छोड़ दूं। उस्ताद कह रहा है, लीडर कह रहा है कि चला जा वापिस। अगर मिसाल के तौर पर मुकद्दस अलीशा अगर वापिस चला जाता तो क्या उसने बरकतों से माला माल होना था? क्या उसे वो बरकत मिलनी थी जो उसका उस्ताद, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं की, वो बरकत जिसके बारे में हम सीख रहे हैं उसने कभी भी नहीं पानी थी, कभी भी नहीं वो पा सकता था। अगर वो चला जाता वापिस अगर चला जाता तो उसने बरकत से महरूम रह जाना था। उसने मुकद्दस एलिया से कहा कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। सामने
सामने दरियाई यरदन आ गया है। उस्ताद ने कहा लौट जा, अब भी वापिस लौट जा। उसने कहा नहीं, नहीं लौटूंगा मैं वापस, मैं तेरे साथ रहूंगा। एक फेद पर वो खड़ा है, एक इनर पर वो खड़ा है। क्या मुझे तेरे रूह का दुगना चाहिए? मुझे बस तेरे रूह का दुगना चाहिए। खड़ा है एक फेद पर। आज हम क्यों अपना फेद बदल लेते हैं? चर्च में जो फेद होता है, कार जाते ही फेद असी चेंज किया होता है, लेकिन मुकद्दस एलिया की, मुकद्दस अलीशा की लाइफ ऐसी नहीं थी। खड़ा है, जानता है उस्ताद के बारे में कि मेरा उस्ताद किस तरह का आदमी है, किस तरह की शख्सियत है। ये जानता है, मिरेकल करते हुए देखे हैं उसने। नहीं छोड़ रहा उसका साथ। यरदन आ गया, उस्ताद ने दरियाई यरदन पर अपनी चादर मारी और उसने समंदर को, दरिया को दो हिस्सों में उसने तकसीम कर दिया। फिर उस्ताद कह रहा है कि चला जा वापिस, चला जा वापिस। उस्ताद ने क्या ही दिता, लीडर ने क्या ही दिता, उस्ताद ने क्या ही दिता कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। जब मैं पैसेज की स्टडी कर रहा था, ये मुझे थोड़े से ना सख्ती के अल्फाज फील हुए हैं। अगर असी बार बार किसी को कोई चीज़ मंगी जाइए ना, वो आके के पता की कह देगा, यार मैं तेरे लिए की कर सकना वा। मुकद्दस एलिया सेम इसी तरह की बात अलीशा के साथ कर रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। शिगिर्द ने क्या मौका है। उस्ताद ने खुद मुझसे पूछ लिया है। मैं ये चाहता था कि मेरा उस्ताद खुद मेरे अंदर की बात मुझसे पूछे। उसने कहा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि मुझे तेरे रूह का दुगना हिस्सा चाहिए, मुझे तेरे रूह का दुगना हिस्सा चाहिए। उस्ताद ने जो 3-4 दफा उस्ताद को पूछता गया ना, उस्ताद ने कहा अच्छा तेरी यह डिजायर है, तू वह चाहना है। अगर ते मेरी चादर जेड़ी मैं दी है, अगर ते तेरे उत्ते आ गई, ते समझ मेरे रूह का दुगना हिस्सा तेरे नाल काम करेगा। मेरे रूह का दुगना हिस्सा तेरे साथ काम करेगा। अगर साथ छोड़ देता, पीछे हट जाता, तो केड़ी चादर, केड़ा उस्ताद, खाली रह जाना था, बरकत से खाली रह जाना था। मुकद्दस अलीशा ने सलातीन की किताब पढ़कर देखिए, उसके उस्ताद ने जो मोजज़े किए हैं, उससे भी बड़े बड़े मोजज़े मुकद्दस अलीशा ने किए हैं। किताबें मुकद्दस में कलम बंद है। अगर उस्ताद ने दरियाई यरदन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, तो शिगिर्द ने भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है। वजह क्या थी? ताबेदारी, वफादारी। मुकद्दस अलीशा की ये वफादारी है। अगर आज हम ताबेदार रहेंगे तो वक्त आएगा, खुदा हमें ब्लेस कर देगा, खुदा हमारे लिए दरवाजों को खोल देगा, खुदावंद हमारे डिजायर को पूरा कर देगा, खुदावंद हमारी विश को पूरा कर देगा। अगर तो मेरे अजीजों आज शाम आप चाहते हैं कि मुझे रूह का दुगना चाहिए, तो फिर अगर दुगना पाना है ना, तो फिर दुगनी मेहनत करना शुरू कर दो, दुगनी मेहनत करना शुरू कर दे। रुपया पैसा खुद पूछेगा कि नदीम साहब मैनू केड़ी लवारी दे विच रखना जे,
मेहनत करना शुरू कर दे। मुकाशवा की किताब के अंदर ही लिखा हुआ मिलता है कि अगर तू दौलतमंद होना चाहता है तो मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीद ले। खुदावन चाहता है कि हम दौलतमंद हो जाएं, हम रिच हो जाएं, हम अमीर हो जाएं, लेकिन असी ढीठ हिरने को बन गए हैं, असी खुद नहीं दौलतमंद होना चाहते। खुदावन तो ओपनिंग दे रहा है, खुदावन तो बार बार हमें ओपनिंग दे रहा है कि दौलतमंद हो जा, परवेज दौलतमंद हो जा, नदीम दौलतमंद हो जा, शहजाद दौलतमंद हो जा। खुद नहीं होना चाहते, हम खुद नहीं होना चाहते। अगर यहाँ पर शगीर्द लेजी होता, सुस्त होता, जिस तरह के हम आज बने हुए हैं, अगर शगीर्द लेजी होता तो केड़ा दुगना मसा। मसे से इसने महरूम रह जाना था, मसे से महरूम रह जाना था। अगर आज हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे घर में वापर मिकदार के अंदर हो, तो फिर अपने लीडर के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे, फिर अपने लीडर के साथ चलना शुरू कर दे, फिर अपने लीडर की ताबेदारी के अंदर आ जाए। हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। आज मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए आज शाम यही मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि गिव मी डबल पोर्शन, तो गिव मी डबल पोर्शन के लिए अपने आप को भी डबल करना पड़ेगा, अपने आप को भी डबल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मेहनती हाथों को दौलतमंद बना देता है। मुकद्दस लिशम मेहनत करता रहा है, उसकी ताबेदारी उसकी मेहनत है, उसकी वफादारी उसकी मेहनत है। उस्ताद जाते जाते गिफ्ट दे गया कि जा, मेरी रूह का दुगना ही तेरे साथ काम करेगा। सो मेरे अजीज़ों, आज शाम मेरे और आपके लिए यही मैसेज है, खुदावंद अपनी रूह का दुगना दे। सो खुदा